إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، اسلامی تاریخ کا یہ درس جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہماری بات چل رہی ہے ابھی خلافت بنی امیہ کے تعلق سے، جس کے پہلے خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا دور جو 20 سال 20 ایئرس پورا 20 سال پر یہ پورا ان کا خلافت کا دور ہے. بڑی لمبی مدت ان کی خلافت کی رہی ہے. اتنی لمبی مدت انہوں نے گزاری ہے خلافت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئی تھی اس سے پہلے کہ 41 ہجری میں ان کے ہاتھ پر خلافت کے لیے بیعت کی گئی، اور پوری امت ان کی خلیفہ ہونے کو پوری امت نے تسلیم کیا. ان کے ہاتھ پر سبھی نے خلافت کی بیعت کی، سب نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا، اور بغیر کسی اختلاف کے 20 سال تک وہ خلیفہ رہے. اب ان کی زندگی کے بالکل آخری دن انہوں نے بالکل آخر میں کیا کارنامے انجام دیے اور کیا اہم چیزیں تھیں جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی، ان کی وصیت کیا تھی اور لوگوں کے لیے ان کا پیغام کیا تھا. یہ چیزیں ہیں جو آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے تعلق سے، سیاست کے تعلق سے جو ان کا تجربہ ہے وہ سب سے زیادہ رہا ہے. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ تجربہ اس چیز کا انہی کو تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ اس کے پہلے خلافت 20 سال اور اس سے پہلے 20 سال تک انہوں نے مختلف عمارتیں بھی سنبھالی تھیں، اور مختلف جگہوں پر انہوں نے یہ کارنامہ بھی انجام دیا تھا. میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو شام کا علاقہ ان کے ہاتھ میں آیا اور اس کے یہ گورنر بنائے گئے، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ وہاں کے گورنر ہی رہے. علاقوں میں اضافہ ہوتا گیا، ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن کبھی بھی ان کو ان کی اس ذمہ داری سے ہٹایا نہیں گیا. حالانکہ دوسرے صوبے اور دوسرے علاقے جو تھے، دوسرے اسٹیٹس جو تھے اسلامی خلافت کے، وہاں کے گورنر چینج بھی ہوتے رہے، وہاں کے لوگوں کی شکایتیں بھی ہوتی رہیں، ساری چیزیں ہوئیں، لیکن شام کے علاقے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سکہ ایسا جمع رہا کہ وہاں پر
कोई तब्दीली नहीं की गई, बल्कि मैंने आपसे कहा कि उनकी जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा किया गया, बल्कि और इलाके भी उन्हें सौंप दिए गए, उनके हवाले कर दिए गए। और इस तरह से इन्होंने पूरे इलाके को अपनी मुट्ठी में रखा, अपने साथ जमाए रखा कि ये उनकी सियासी बसीरत की बहुत बड़ी मिसाल है, ये बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है ये, और ये उनकी बहुत बड़ी फजीलत मानी जाएगी। ये एक दो एक दो साल की बात नहीं है मेरे भाइयों, ये मैंने कहा आपसे कि 20 साल ये गवर्नर जो है, गवर्नरी का इनका जमाना, और फिर 20 साल खिलाफत का जमाना। 40 साल तो इनकी जिंदगी इसी में गुजरी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इस फील्ड के कितने माहिर आदमी होंगे। आपको इसका अंदाजा हो रहा होगा कि कितना तजुर्बा था उनको। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा तजुर्बेकार आदमी, जिसको इतना तजुर्बा है, इतना एक्सपीरियंस है, उसकी जो वसीयत होगी, उसकी जो बातें होंगी, और वो जो सोचता होगा कि आइंदा के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कि किस तरह की स्ट्रैटेजी जो है ये बनाई जाए और किस तरह का आगे के लिए प्लान बनाया जाए, जाहिर सी बात है कि उनसे बेहतर कोई इस सिलसिले में नहीं सोच सकता था। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो उसी सिलसिले की आज एक कड़ी आपके सामने पेश कर रहे हैं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जब उन्हें एहसास हुआ कि शायद ये बीमारी अब इससे मैं अच्छा नहीं होगा और मेरा अब दुनिया से चल चलाव का वक्त है, तो उन्होंने जो अपने बेटे को वसीयत की है, उनका बेटा यजीद यजीद बिन मुआविया, पहले आपके सामने बात आई कि अपनी जिंदगी में ही अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी वली अहदी की बैयत लेनी थी। वली अहदी को हमने बताया था आपको, इसका मतलब ये होता है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद खलीफा यही रहेंगे। तो ये पहले से तय हो गया, उनकी जिंदगी में ही उन्होंने ये मामला जो है तय कर लिया कि उनके बाद उनका बेटा यजीद यही जो है खिलाफत का हक रखेगा, और लोगों से इसके ऊपर बैयत दे ली थी उन्होंने। इसको वली अहद कहा जाता है। मैंने समझने के लिए आपको बताया था कि आज की जबान में अगर आप समझना चाहते हैं, हमारे यहाँ की जबान में जो हम यहाँ लैंग्वेज यूज करते हैं, उसके लिहाज से अगर आप समझना चाहते हैं, तो इसको कहा जाता है कि युवराज जो है, एक राजा होता है और एक युवराज होता है। तो ये उस वक्त समझ लीजिए कि युवराज जो है, इनके इनको तस्लीम किया गया और इनके सर पर उसका ताज रखा गया, लेकिन ये खलीफा नहीं है। जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो जाएगा, तभी इनको खिलाफत की गद्दी सौंपी जाएगी और ये खिलाफत का ताज उसी वक्त पहनेंगे। तो ये बात नोट करने की थी, मैंने आपको जो है पेश किया। अब उनके बाद चूंकि इन्हीं को खलीफा बनना है, यजीद को, तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको जो वसीयत की है, ये वो उनका तजरिबा बोलता है उसमें। जो 40 साल का तजरिबा था उनको इस फील्ड का, वो तजरिबा बोलता है मेरे भाई। और ये चीजें होती हैं, मैं इसके ऊपर बहुत जो है तवज्जो दिलाई मैंने आपकी, कि हर फील्ड के कुछ लोग होते हैं, हर फील्ड के कुछ लोग होते हैं। अरबी में कहा जाता है वलिकुल्ल फन्निन रिजाल, हर फन के आदमी होते हैं। तो हर फील्ड के कुछ लोग होते हैं। इस फील्ड के माहिर आदमी अगर कहा जाए तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसमें कोई शुबहा नहीं है। मैं इनका मुकाबला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं कर रहा हूँ, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं कर रहा हूँ, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं कर रहा हूँ, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं कर रहा हूँ। ये जो है इनसे पहले जो लोग गुजरे हुए थे, यकीनन वो सब की सब इनसे अफजल भी थे और इनसे बेहतर सियासतदां भी थे। हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये खुद भी इस बात का एतराफ करते थे, इन्होंने खुद ये बात कही भी है अपने बारे में। और
ये बात जो कही जा रही है ना, बाद में जो लोग आए या जो उस वक्त मौजूद थे, जब ये खलीफा रहे, तो जो लोग मौजूद थे, तो फजाइल के लिहाज से हो सकता है कि बाद सहाबा अपने इल्म और अपने फजाइल के लिहाज से इनसे बेहतर हो, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। इल्म के मैदान में उस वक्त जब ये खलीफा रहे हैं तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी थे, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी थे, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी थे। और भी दूसरे सहाबा, ये नहीं है कि बस यही है, और भी दूसरे सहाबा, यहाँ तक कि अशरे मुबशरा में से बाज़ लोग मौजूद थे, बाज़ सहाबा मौजूद थे जिनके फजाइल अपनी जगह पर मुसल्लम हैं, और जिनकी खूबियाँ और जिनकी कुर्बानियाँ ये सब जो है मुसल्लम है। लेकिन सियासत के मैदान का शहसवार ये अजीम सहाबी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस मैदान में कोई इनका मुकाबला नहीं था, याद रखिएगा। कभी कभी समझाने के लिए ये बात कही जाती है, मैं ये चीजें इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। इन चीजों को आदमी नहीं समझ पाता है तो वही परेशान होता है कि जो है ये थे तो ये खलीफा क्यों बने या इनको क्यों बनाया गया। याद रखिए, आप जैसे कोई भी अच्छा खेल खेलते हैं, आपको जो है उसका तजुर्बा हो, आपको आपको उसके पास आपके पास उसकी सलाहियत है। तो एक तरफ तो ये होता है कि आपकी खेल की सलाहियत जो अल्लाह ताला ने आपको दे रखी है, ये मौहिबा होता है, टैलेंट होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है किसी भी इंसान को। और एक है आपकी फजीलत और आपका इल्म और आपका तकवा, ये सारी चीजें जो। तो अब अगर कोई आदमी बड़ा दीनदार है और दीन के बारे में उसकी बड़ी अच्छी मालूमात हैं और बड़ा मुत्तकी है, परहेजगार है वो शख्स, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि इसको ला करके आप जो है क्रिकेट के ग्राउंड में उससे बॉलिंग कराना शुरू कर देंगे, आप उससे बैटिंग कराना शुरू कर देंगे, उसको कुछ भी पता नहीं उसके बाद। तो ये तो काम नहीं कराएंगे आप उससे। कहाँ क्या जो है मामला है वो उसको देखा जाता है, उसके अंदर वो सलाहियत देखी जाती है कि इस मैदान की सलाहियत इसके अंदर कितनी है। वो बहुत जरूरी चीज होती है। मैं इसको समझाने के लिए बात आपसे कह रहा हूँ। आप कोई भी जो है, आप जिस फील्ड के आदमी हैं, अभी आप आईटी जो है फील्ड के मतलब आदमी हैं, अब कोई शख्स बड़ा दीनदार है, कुरान का हाफिज है और जो है हदीसें याद कर रखी हैं, बहुत बड़ा आलिम है और बहुत जो है चीज़ों का अच्छे अच्छी जो है नॉलेज रखता है, और बड़ा माहिर, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, बड़ा अमानतदार, बड़ा सच्चा इंसान है। तो आप उसको ला करके जो है कंप्यूटर पर तो नहीं बैठा देंगे कि आप जो है लीजिए ये जो है हमारा एक वेबसाइट बनानी है, आप वेबसाइट बना दीजिए। नहीं करेंगे आप उससे, क्योंकि इस मैदान का उसको तजुर्बा नहीं है। इस फील्ड का वो आदमी नहीं है, वो अपनी उसकी सलाहियत अपनी जगह पर होगी लेकिन वो इस फील्ड का आदमी नहीं है। तो ये चीज मैं जान चाहता हूँ कि आप समझें इसको। और जो लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं वही लोग इन मसाइल को लेकर के काफी काफी उलझे रहते हैं और उनको बातें समझ में नहीं आती हैं। तो ये अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग जो है अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को टैलेंट मिलता है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई मुकाबला नहीं था जंग के मैदान में। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फजाइल अपनी जगह पर है, लेकिन जंग के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको कमांडर नहीं बनाया। जब जंग के मैदान की बात है, किनको बनाया? खालिद बिन वलीद को बनाया, क्योंकि इस फील्ड के ये आदमी है। और भी दूसरे साहबा, मैं एक सिर्फ नाम ले रहा हूँ उनमें से समझाने के लिए। आज जो हम देखते हैं ना कि पूरी दुनिया में स्पेशलाइजेशन जिसे कहा जाता है, कि तखस्सुस हम अरबी में कहते हैं, कि अलग अलग जो है लोगों के होता है और लोग में उनका जो है तखस्सुस होता है और वो उसके स्पेशल और उसके माहिर आदमी माने जाते हैं, ये होता है।
तो ऐसा नहीं था कि सहाबा के दौर में ऐसी चीज नहीं थी, नहीं, उस दौर में भी ये चीज थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज को महसूस किया और इसको अपनाया भी है। अगर जो है जंग का मैदान होता था तो आपको खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु नजर आएंगे। हदीसें याद करने और पढ़ने का मामला होता था तो आपको अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु याद जो है उसमें आपको नजर आएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुआ दे रहे हैं उसके ताल्लुक से, हदीसें याद करने के ताल्लुक से। कुरान की तर्जमानी का मसला आता है तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को दुआ मिलती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और उनकी एक खास पहचान होती है। कुरान पढ़ने के ताल्लुक से मामला हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 सहाबा का नाम लेते हैं उसके अंदर। अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी अच्छी पहचान इसमें मानी जाती है। मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक पहचान है। सालिम जो कि अबू हुज़ैफा या जो है कंसार के जो इसके गुलाम थे वो, और इनके साथ रहते थे ये, तो ये उनकी पहचान थी। उबई इब्न काब अपनी एक पहचान रखते थे। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब जब जो है तरावीह की नमाज का मसला आया तो किसी और को नहीं आगे बढ़ाया, किसको बढ़ाया था? उबई इब्न काब को बढ़ाया था, क्योंकि वो इस फील्ड के आदमी थे। बाकी सब लोग सब जानते रहते हैं, इल्म होता है, लेकिन ये उनका कहिए कि खास फील्ड है, उनका स्पेशलाइजेशन जो है इसके। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी जो है बसीरत और लोगों को परखने, लोगों का चेहरा पढ़ने और लोगों की शख्सियत को जानने का जो फन था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, ये हर कोई जानता है कि हर एक के ताल्लुक से ये आदमी कौन से काम के लिए बहुत मुनासिब होगा, वो इतना अच्छा जानते थे इसको। इतना मुदब्बिर शख्स अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर की हैसियत से मुंतखब करता है कि उनको पता है कि इनके अंदर ये टैलेंट है, और जब उनको मुंतखब किया तो उनको उसको उन्होंने साबित करके दिखाया। ऐसा नहीं कि उनको मौका दिया गया, अपॉर्चुनिटी होती है ना, तो आदमी अपॉर्चुनिटी जो उसको मिलती है उसको दिखाता है कि हाँ वाकई मेरा जो इसमें इंतखाब हुआ, मुझे जो चूज किया गया है, तो मेरे अंदर ये गट्स मौजूद है, मेरे अंदर ये टैलेंट मौजूद है। उन्होंने वो टैलेंट दिखाया शाम के इलाके में। मैंने कहा आपसे कि उनके बारे में कोई शिकायत नहीं आई और लंबी मुद्दत तक वहाँ के गवर्नर रहे और वहाँ के लोग उन पर अपनी जान छिड़कते थे, अपनी जान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस तरह से उन्होंने लोगों को जोड़ के रखा था। ये बड़ी बहुत अहम खूबी मानी जाती है किसी शख्स की। तो मैं ये बता रहा था आपको, ये इस फील्ड के आदमी थे, बहुत माहिर आदमी थे इसके। तो 20 साल तक तो वो जिंदगी गुजारी, फिर खिलाफत 20 साल तक गुजारी, और इनके दौरे खिलाफत में कहीं कोई जो है कोई चीज जो है ऐसी नहीं हुई कि जो खिलाफत के खिलाफ या इनके खिलाफ लोग उठ खड़े हों, कुछ मसाइल हुए हों, या जो है आपस में जंगें हुई हों, या लोग जो है बगावत की तरफ आए हों। ऐसी कोई चीज नहीं। कहीं भी अगर किसी फितने ने हल्का सा भी सर उठाने की कोशिश की तो उन्होंने फौरन उसको वहीं दबा दिया। ये इनकी जो है महारत थी, इनका टैलेंट था जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दिया था। अब उस टैलेंट की एक झलक देखिए आज के दर्स में। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो अपने बेटे के लिए वसीयत की है, जिनको अब खलीफा बनना है, तो जब मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात का वक़्त करीब हुआ, ये 60 हिजरी का जो है ज़माना है, हिजरत का ये 60वां साल, 60 जो है ईयर्स हो चुके हैं हिजरत के। और उस वक़्त यज़ीद शाम में इनके पास नहीं थे, वो कहीं सफ़र में थे, मौजूद नहीं थे। लेकिन अब इनको एहसास हुआ कि अब चल चलाव का वक्त है, मुझे वसीयत तो करनी है। वसीयत कहते हैं उन अहम बातों को जो मरने वाला अपने बाद लोगों के लिए करके जाता है।
वो ख़ास नसीहतें होती हैं जो बड़ी ताकीद के साथ लोगों से कही जाती हैं कि लोग उस पर अमल करें। तो इन्होंने ये किया कि ज़हाक बिन कैस, जो इनके इनकी जो पुलिस थी, उस पुलिस के उस ज़माने में बड़े जो है सरबराह थे और बड़े ओहदेदार थे ये, और एक मुस्लिम बिन उक़बा मुरीब, इन दोनों को बुला करके इन्होंने अपनी वसीयत इनको नोट कराई। नोट कराने का मतलब ये था कि इनसे कहा कि मेरी ये वसीयत है यजीद के लिए, जब यजीद आए तो आप मेरी ये वसीयत उन तक पहुंचा दीजिएगा। ये वसीयत क्या है, अपने बेटे को मुखातब करके वो कहते हैं, अरबी में अल्फाज हैं कि उन्जुर अहलल हिजाज फ़इन्नहुम अस्लुका। ये वसीयत मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें कि इससे पता लगता है कि ये कितने माहिर आदमी थे इस फील्ड के, कि किस तरीके से हुकूमत चलाई जाती है, सियासत क्या चीज होती है, इसके ये बड़े माहिर आदमी। तो कहते हैं सबसे पहले अपने बेटे को वसीयत करते हुए कि उन्जुर अहलल हिजाज फइन्नहुम अस्लुका, कहा कि सबसे पहले तुम्हें हिजाज वालों का ख्याल रखना है। अपने खिलाफत के दौर में किनका सबसे पहले ख्याल रखना है? हिजाज वालों का। हिजाज का इलाका कौन सा है? मक्का, मदीना, ताइफ, ये जो एरिया है ना, इसी को हिजाज का एरिया कहा जाता है। मक्का उसी से जुड़ा हुआ जिद्दा है, फिर ताइफ का इलाका है, फिर मदीने का इलाका है। इस इलाके को अरबी जबान में हिजाज कहा जाता है। तो उस जमाने से ये चला आ रहा है, ये इस्तिलाह चली आ रही है, अभी भी इसको जो है हिजाज का एरिया ही कहा जाता है। अभी भी सऊदी में ये इलाका हिजाज का इलाका कहलाता है। तो कहा कि ये जो है अहले हिजाज का ख्याल रखना, क्योंकि यही असल है। दीन हमारा इसी इलाके से ना जो है फैला हुआ है। मक्के से शुरुआत होती है और मदीने में आकर के उसके बाद मदीना जब पहुंचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यहाँ दीन की तकमील होती है और वहीं से फिर दीन की दावत ये पूरी दुनिया तक पहुंचती है। तो कहा कि यही असल है। और उस जमाने में खास तरीके से आप इसी चीज को समझ सकते हैं कि यही वो इलाका था ना उस जमाने में, जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी थी। तो वहां पर सहाबा की बड़ी तादाद थी, और उन सहाबा से इल्म हासिल किए हुए ताबईन, उनकी बड़ी तादाद थी वहां पर। तो इस लिहाज से, और वो इल्म का मरकज भी था, दीन का मरकज था, पहले भी था और अभी भी है। क्योंकि मस्जिद हराम, अल्लाह का घर काबतुल्लाह, ये मक्के के अंदर, और मदीने में मस्जिद नबवी, तो ये चूंकि इस्लाम का, कह लीजिए ये इस्लाम की रूह है, उसका दिल है ये जो है। तो यहाँ जो लोग रहते हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये फजीलत दी है कि उनको यहाँ का बाशिंदा बनाया, वहाँ का सिटीजन बनाया, तो उनको जो है ये असल है उनका ख्याल रखना। ये पहली वसीयत थी। कहा फ़अक्रिम मन क़दिम अलैका मिनहुम व तअहद मन गाब। ये दो यानी बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है, ये बहुत मुख्तसर बातें, लेकिन एक एक इसका सेंटेंस बड़ा वजनी है मेरे भाइयों, बड़ा वैल्यूएबल है ये, जो आज के दौर में भी और क़यामत तक के लिए भी लोगों को ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। आप भी कभी जो है टीम लीडर बनते हैं, कभी इस तरह की चीज़ें अगर आपकी ऑफ़िसों में और आपकी जो है कंपनियों में होती हैं ना, कभी आपको ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं, तो उससे इसी सब चीज़ों से फ़ायदा उठाइए आप, किस तरह से क्या किया जाता है जो। तो ये अहम चीज़ें हैं, ये सब सीखी जाती हैं तारीख से। तो इन्होंने क्या कहा कि फ़अक्रिम मन क़दिम अलैका मिनहुम, हिजाज़ के लोगों में से जो भी तुम्हारे पास आए और जो तुम्हारे साथ हो, उसकी बड़ी इज्जत करो, बड़ा एहतराम करो उसका, उसको इज्जत दो। इज्जत दोगे हमेशा जो है, जो अच्छे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं ना, तो उनको उसी लिहाज से इज्जत भी देनी होती है। ये नहीं है कि टीम लीडर या कहिए जो कायद है, जो लीडर है, या जो जो है
अमीर है तो वो सिर्फ अपना देखे कि हाँ भाई मैं तो खलीफा हूँ, मैं तो अमीर हूँ, और लोगों की इज्जत का ख्याल ना करे, तो वो सही आदमी नहीं होता है। फिर उसका जो है उसका ओहदा या उसकी जिम्मेदारी वो सही तरीके से वो नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ समझाई कि जो भी इसमें से आए, जिनके साथ भी आपका मामला हो, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमेशा इज्जत का मामला करना, इज्जत के साथ पेश आना। वतअहद मन गाब, जो नहीं आ रहा है, तुमसे खिंचा खिंचा है, अलग अलग रह रहा है, तो उनका ख्याल रखना कि ये आदमी कर क्या रहा है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, याद रखिएगा। तअहद मन गाब, जो गायब है मतलब क्या है, ये तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, तुमसे मिल नहीं रहा है, और जो है तुम्हारे जो है उसके साथ राब्ते में नहीं है, वो अलग थलग रह रहा है, ऐसा अगर किसी के बारे में मालूम होता है तो उसकी एक एक हरकत को नोट रखना ये बहुत जरूरी है कि आदमी कर क्या रहा है, क्योंकि अंदर क्या चीज हो रही है ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने ये टैलेंट दिया था। वो भी जो है कहाँ क्या हो रहा है, एक एक चीज की जो है खबर होनी चाहिए, और इस तरीके से चीजें चलती हैं ये। मैं आज के दौर की एक मिसाल पेश करता हूँ, हालांकि अब हम सहाबा के साथ जो है ये जो खुला हमारे गुजरे हुए हैं उनके साथ हम ये मुकाबला नहीं करते, लेकिन हमारे भाई लोग चूंकि इस तरह के नाम जानते हैं और ये करीब की तारीख है, तो इस तरह की तारीख पढ़े हुए हैं आप लोग, आपके स्कूलों कॉलेजों में जो है ये सब चीजें बताई गई होंगी, इसलिए मैं वो याद दिलाना चाहता रहता हूँ। बस ये मैं मुकाबला नहीं कर रहा, यानी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा। कभी भी ये दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता। मुकाबला तो बराबर के लोगों का किया जाता है। ये बराबर के लोगों का जब कोई मामला ही नहीं ना है यहाँ पे। तो मैं अभी करीब की तारीख बता रहा था आपको कि नेपोलियन का नाम सुना होगा आपने। नेपोलियन के ताल्लुक से अरबी ज़बान में भी बहुत सी बातें हैं, उर्दू में भी लिखी हुई हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने भी बातें कुछ लिखी हैं, अपनी किताबों में ज़िक्र की हैं, उसकी कुछ खूबियाँ ज़िक्र करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई अच्छा आदमी था ये, नहीं। लेकिन इसने अपने दौर में किस तरीके से चीज़ों पर काबू किया और कैसे उसने हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में किया, तो उसकी एक खूबी ये बयान करते हैं इस सिलसिले में कि वो अपनी हर चीज की, अपनी हुकूमत में हर चीज की निगरानी, चीज भी उससे गायब ना रहे। ऐसा ना हो कि उसकी जो है उसकी जो बादशाहत है, या कहिए उसका जो भी जो है मुल्क है, उसके मुल्क के अंदर कहीं कोई चीज हो रही है और उसको इल्म ही ना हो, तो ये एक अच्छे जो है एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान नहीं होती है। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान ये होती है कि हर चीज का उसे, अगर उसके जो है जो जो उसका इलाका है, अगर उसमें कहीं भी कोई चीज हो रही है तो उसका उसे पता होना चाहिए। ये उसका जो है इस तरह से नेटवर्क होना चाहिए कि उसको हर चीज की खबर हो जाए। तो लोग उसके बारे में ये जिक्र करते हैं, मैं असल ये कहना चाह रहा था कि उसको ये भी पता होता था कि मेरी जो फौज है उस फौज के किस घोड़े को नाल लग, किसका किसकी नाल लगना अभी बाकी है। ये मैं एक, हालांकि ये जो जाहिर सी बात है कि जो असल जिम्मेदार होता है, अब ये सब छोटी छोटी चीजें कहाँ रखेगा जो, लेकिन उसको हर चीज का इल्म होता। वो इस तरह का नेटवर्क उसने बना रखा था कि कोई भी चीज होगी तो फौरी तौर पर उसको उसकी इत्तिला मिलेगी, और कोई चीज उससे ढकी छुपी नहीं रहेगी। ये क्यों ये जरूरी होता है कि अगर अंदर कोई कहीं चिंगारी है, चिंगारी का मतलब समझते होंगे, अभी आग जो है ना जो जलती है ना, तो उसमें चिंगारी होती है। उसी वक्त आप उस पर पानी डाल देंगे तो वो बुझ जाएगी, लेकिन जब ये चिंगारी भड़क जाएगी, आग जो है लग जाएगी, तब जो है उसको बुझाना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए
शुरू में ही चीज मालूम हो जानी चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, और किसी कोई चीज है फौरी तौर पर उसको वहीं खत्म कर दिया जाए। तो ये है, ये वसीयत, इसको ज़हन में रखिए। कहा कि वतअहद मन गाब, जो उसमें से गायब है, यानी वो आपके राब्ते में नहीं है, आपके पास नहीं आ रहा है, या जो है उसके बारे में आपको कुछ भी जो है पता नहीं चल रहा है, तो ज़रूरी है कि आप उसकी खुद खबर रखें। आप पता करें, आपका ऐसा नेटवर्क होना चाहिए कि एक-एक चीज़ का आपको इल्म हो कि आदमी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ये अहले हिजाज के बारे में वसीयत की थी। दूसरा एक अहम सूबा था, स्टेट सा इराक का एरिया जो है, तो कहा वंजुर अहलल इराक, और इराक वालों को भी देखना जो है, इनका भी ख्याल रखना। ये उस जमाने में इराक का इलाका, यही कूफा बसरा का इलाका, आज भी यही नाम मौजूद है, इराक ही कहा जाता है। वो जो मशहूर शहर हैं कूफा और बसरा, बगदाद जो है, ये आज भी वही नाम मौजूद है, उस जमाने में भी ये नाम थे। तो कूफा और बसरा ये दो अहम शहर थे इस इराक जो है स्टेट के। तो कहा कि इराक का जो गवर्नर होगा ना तुम्हारा, तो उसका भी बड़ा ख्याल रखना, और वहाँ के लोगों के बारे में भी पूरा ख्याल रखना। इराक वालों की परेशानी ये थी कि ये लोग हर रोज अपने गवर्नर की शिकायत करके भेजते रहते थे खलीफा को, कोई भी यहाँ पर गवर्नर जो है ना टिक नहीं पाता था, और हमेशा गवर्नर चेंज होते रहते थे यहाँ पर। पहले भी बातें आई, यहाँ तक कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में भी यहाँ गवर्नर बराबर चेंज होते रहे, वो भी तब्दील करते रहे। बड़े बड़े सहाबा को वहाँ का गवर्नर बनाया गया, लेकिन उनकी भी शिकायतें हुई तो उनको भी चेंज किया गया। अब से कि ये वो इलाका था, असल इलाके को जाना भी होता है। तो कहा कि अहले इराक का भी ख्याल रखना, फ़इन सअलूक अन तअज़िल अन्हुम कुल्ल यौमिन आमिलन फ़फ़अल, अगर ये लोग तुमसे ये मुतालबा करें हर दिन नए गवर्नर का, तब भी तुम कर देना। ये मत सोचना कि ये क्या तुम लोग बार बार जो है गवर्नर को बदलने की मांग करते रहते हो, ऐसा नहीं। बल्कि वो जैसा कह रहे हैं उसके मुताबिक, अगर ये बड़े मुबालगे की बात है कि अगर हर रोज भी अगर ये बदलने की जो है मांग करें, तो हर रोज वहां का गवर्नर चेंज कर दो। ये मतलब कहने का ये है कि वो जब भी ये मुतालबा करें तुमसे, ये दरखास्त करें गवर्नर को चेंज करने की, तो उनकी ये रिक्वेस्ट उसे कबूल कर लेना। क्यों ऐसा है? कहा फ़इन अज़्ल आमिल अहब्बु इलैया मिन अन अलैका मिअत अल्फ सैफिन, क्योंकि एक आमिल को, गवर्नर को चेंज कर देना, उसको हटा करके दूसरे को जो है वहां पर मुतय्यन कर देना, ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा पसंदीदा है इसके मुकाबले में कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वहां से 1 लाख तलवारें तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी हो। वहां के लोगों का मिजाज ऐसा था कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो फौरन तलवार उठा लेंगे और खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। तो उससे बेहतर यही है कि उनकी बात तस्लीम करते हुए, अगरचे कि वहां के गवर्नर की कोई गलती ना हो, फिर भी क्या है, गवर्नर चेंज कर दिया जाए। मैंने आपसे अभी कहा कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपने दौरे खिलाफत में यही सियासत अपनाई थी वहां के लोगों के बारे में। उन्होंने भी ऐसा ही किया। मैंने आपसे कहा अभी कि जो है साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इतने बड़े सहाबी, अशरे मुबशरा में से हैं वो, और कादिसिया की जंग के वो हीरो थे। कादिसिया की जंग जो लड़ी गई थी उसके हीरो थे वो, वही फौजी कमांडर थे उस वक्त। ये जो है साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इतने अहम सहाबी, कूफे के लोगों ने उनकी शिकायत कर दी, तो अमीर मुआविया, तो उस वक्त उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको हटा दिया था वहां से, और अपनी वफात के वक्त उनसे ये बात कही भी थी, और उसके अलावा भी कही थी, उनको ये बताया था कि मुझे ये यकीन है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, और तुम्हारी सलाहियत के बारे में भी मुझे कोई शक व शुबहा नहीं है।
تم جو ہے اس کے اہل بھی ہو اور پوری تمہارے پاس اس کی صلاحیت ہے. میں اس لیے نہیں تم کو ہٹا رہا ہوں کہ تمہارے اندر کوئی کمی ہے یا تم نے کوئی غلط کام کیا ہے، بلکہ صرف اس لیے ہٹا رہا ہوں کہ وہاں کے لوگوں نے شکایت کی ہے. ان کی شکایت غلط ہے، اس کے باوجود بھی ہٹا دیا. یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا تھا. میں وہی بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ انسان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے. اس کو سمجھتا ہے حالات کو جو ہے کہ اپنی جگہ پر اگرچہ کہ یہ شکایت غلط ہے، لیکن اگر یہ شکایت نہیں مانی گئی تو وہاں کے لوگ جو ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. تو جو اس کے مقابلے میں فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا وہ اور بڑا ہوگا. اس سے بہتر یہ ہے کہ جیسا وہ کہہ رہے ہیں اس کے لحاظ سے وہاں گورنر چینج کر دیا جائے. تو وہی بات یہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وانظر اہل الشام، اہل شام. اب یہ ایک تیسرا اہم علاقہ تھا، شام کا ایریا. یہی تو ان کا کیپٹل سٹی تھا، یہیں پر ان کی خلافت جو ہے ہوئی بنو امیہ کی. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہیں سے چل رہی تھی، کیونکہ یہی وہ علاقہ تھا جہاں کے لوگوں پر سب سے زیادہ اعتماد کر سکتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں جو ایک لمبی مدت تک ان کی گورنری تھی، اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں انہوں نے ایسی جگہ بنا لی تھی کہ میں نے ابھی آپ سے یہ بات بھی کہی تھی کہ یہ لوگ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو کہا وانظر اہل الشام فلیکونوا بطانتک وعیبتک. کہا کہ اہل شام کو بھی دیکھنا، کیونکہ یہی اصل لوگ ہوں گے جو حکومت چلانے میں تمہارا ساتھ دیں گے. یہیں سے اصل تمہاری حکومت چلنی ہے، تمہاری خلافت چلنی ہے. فَإِن نَابَكَ شَيْءٌ مِّنْ عَدُوِّكَ فَانتَصِرْ بِهِ. اگر تمہارے دشمن کی طرف سے کچھ بھی معاملہ ہو جائے، کوئی بھی تمہاری جو ہے خلافت کے خلاف بغاوت کے لیے آمادہ ہو جائے، بغاوت کرنا چاہے، تو یہی شام کے لوگ ہوں گے. انہی کو ساتھ لے کر کے تم جانا اور یہ تمہاری مدد کریں گے. یہ ایسے لوگ ہیں، یہ شام کے لوگ، ان کا اس لحاظ سے خیال رکھنا. اس کے بعد کہا کہ اگر ان کو لے کر کے باہر جانے کی ضرورت پڑی، کوئی فتنہ اگر کہیں سر اٹھا رہا ہے اور فتنے کو ختم کرنا ہے، فتنے کی سرکوبی کرنا ہے، تو جو ہے یہی شام کے لوگ ہوں گے، ان کو لے کر کے جانا. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جیسے ہی اپنی اس ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤ، یعنی فتنے کا سر جیسے ہی کچل دو، فتنہ ختم ہو جائے، تو پھر شام کے لوگوں کو شام واپس لے کر کے آ جانا. ان کو دوسرے علاقوں میں رہنے مت دینا. یہ نوٹ کرنے کی باتیں ہیں میرے بھائیو، یہ تجربہ بول رہا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجربہ بول رہا ہے. نوٹ کر لیجئے، تجربہ کار لوگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. آپ بھی نوٹ کر لیجئے اس کو. کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ شام کے لوگ جو آپ کے ساتھ جائیں گے، پھر ان کو واپس لے کر کے آ جانا، شام میں ہی ان کو رکھنا. یعنی شام والوں کو دوسرے علاقے کے لوگوں کے ساتھ زیادہ دنوں تک رہنے مت دینا. یہ کہہ رہے ہیں. کیا یہ چیز، کیا خاص بات ہے اس کے اندر کہ اب جیسے عراق والوں کا اپنا ایک مزاج تھا، شام والوں کا اپنا ایک مزاج تھا. اگر شام والے آ کر کے عراق میں کچھ دنوں تک رہ جائیں اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ گھل مل جائیں گے، تو یہ ڈر ہے کہ وہ بھی کہیں ان کے جیسی عادتیں نہ سیکھ لیں. اور جو مزاج جو ہے عراق والوں کا ہے، کہیں یہی مزاج شام والوں کا بھی نہ ہو جائے. تو یہ مزاج اچھا مزاج نہیں تھا. یہ باتیں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہیں کہ یہی کوفے کے لوگ، جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو اپنا کیپٹل سٹی بنایا اپنی خلافت کے دور میں، اور وہیں سے ان کی خلافت چلتی تھی. اور یہی کوفے کے لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ شیعان علی ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے تائید کرنے والے
اور ان کا ساتھ دینے والے انہی لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا۔ تو ان کا مزاج الگ تھا، کہیں یہ مزاج شام والے بھی نہ سیکھ لیں۔ شام والوں کا اس طرح کا مزاج نہیں تھا، بغاوت کا مزاج نہیں تھا، وہاں پر اپنے گورنر کے خلاف جو ہے سر اٹھانے کا وہ مزاج نہیں تھا ان کے پاس جو۔ تو اگر یہ لوگ اس طرح کی چیزیں سیکھ لیں گے تو پریشانی تم کو بھی یہاں شروع ہو جائے گی، جو عراق میں پریشانی ہوئی علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ پریشانی شام میں پھر جو ہے جو بنو امیہ کے خلفاء ہیں ان کو بھی شروع ہو جائے گی، کیونکہ جب اپنے گھر کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں تو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ باہر کی آوازوں کو آپ آسانی سے دبا سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے گھر کے اندر ہی کوئی آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہو تو یہ فتنہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دبانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے تو یہ بہت محاورہ سنا ہوگا اردو میں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھاوے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھاوے، یہ مسئلہ ہوتا ہے سر۔ تو یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ نصیحت تھی، جو وصیت تھی نا، تو ایک ایک اس کا سینٹنس بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ تجربہ بول رہا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ہمیں بھی اس تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کہا کہ فَإِنَّهُمْ إِنْ أَقَامُوا بِغَيْرِ بِلَادِهِمْ أَخَذُوا بِغَيْرِ أَخْلَاقِهِمْ۔ کہا کہ کیونکہ اگر یہ لوگ اپنا اب ملک شام چھوڑ کر کے دوسرے علاقوں میں رہیں گے تو یہ بھی ان کے اخلاق کو سیکھ جائیں گے، اور ان کے جیسا اخلاق ان کے یہاں بھی آ جائے گا۔ یہ باتیں میرے بھائیوں جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی اہم ہیں۔ آج آپ کے گھروں میں بھی اس کی ضرورت ہے، آپ کے اپنے بچوں کی تربیت میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ اس کو نوٹ رکھیے، اس تجربے سے فائدہ اٹھائیے۔ اس کے بعد کہا کہ وَإِنِّي لَسْتُ أَخَافُ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا ثَلَاثَةً۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ خلیفہ قریش میں سے ہی ہوگا، تو خلیفہ جو بھی بنے گا وہ قریش میں سے ہی ہوگا۔ تو یہ بنو امیہ کے لوگ بھی قریش میں سے ہی تھے، یزید بھی قریش میں سے ہی۔ تو اب اگر کوئی خلافت کا امیدوار بن کر کے اگر یزید کے خلاف اٹھ کھڑا بھی ہوتا ہے تو وہ لازمی طور پر قریش میں سے ہونا چاہیے، کوئی غیر قریشی تو اٹھ کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو تو حدیث پتہ ہے کہ الائمۃ من قریش، یہ خلیفہ جو ہے قریش میں سے ہی ہوگا۔ تو جب یہ چیز پتہ ہے تو قریش کے کون لوگ ہیں جو تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیے ان کا تجربہ بولتا ہے، اور جیسا کچھ انہوں نے وصیت میں کہا ہے بعد میں ویسے ہی چیزیں ہوئی بھی ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے ان کو تجربہ تھا، اور تجربے سے کیسے آدمی فیوچر کے بارے میں جو ہے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آج یہاں بیٹھ کر کے فیوچر کے بارے میں وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت گہرائی کے ساتھ جو ہے سوچتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ آج اسی طرح کا تجربہ آپ کے سامنے جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ کیا کہا کہ میں قریش کے 3 لوگوں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم کو ڈر ہے کہ ان کی طرف سے تمہارے خلاف آوازیں اٹھ سکتی ہیں تو یہ 3 آدمی ہیں۔ وہ 3 آدمی کون ہیں؟ حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، عبداللہ ابن عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، عبداللہ بن زبیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ پھر ان تینوں آدمیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اور جو باتیں کہی ہیں وہ بالکل بعد میں ویسے ہی چیزیں ہوئی بھی ہیں۔ کہا فَأَمَّا ابن عمر فَرَجُلٌ قَدْ وَقَضَهُ الدِّينُ فَلَيْسَ مُلْتَمِسًا قِبَلَكَ۔ کہا جہاں تک عبداللہ ابن عمر کی بات ہے تو تم کو ان کو لے کر کے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈونٹ وری جیسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، تو ان کو لے کر کے آپ کو کسی بھی طرح سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک دیندار آدمی ہے، یہ تقوی والے آدمی ہیں، سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیاست سے بہت دور ہے۔ اور یہ حقیقت بھی تھی جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی۔
ये जब पूरी जिंदगी पढ़ेंगे अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की, तो जो भी चीजें हुई वो हमेशा हर चीज से अलग रहे। जंग सिफ़ीन जब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जो है शाम की फौज के साथ जो ये जंग हुई ना, तो उसमें भी ये अलग थलग रहे, किसी के साथ नहीं गए। तो जितने भी जो है फितनों ने जो सर उठाया, तो इसमें ये अलग थलग रहते थे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और जो भी खलीफा हो, अमीर हो, उसकी इताअत करते थे, और जैसा उसकी तरफ से हुक्म होता था उसके मुताबिक अमल करते थे। इनके यहाँ वो चीज़ नहीं थी कि कभी भी जो है इनके ज़हन में ऐसी कोई चीज़ आए खलीफा बनने के ताल्लुक से, या ये कि मैं जो है खुद खलीफा बनूँ। तो ये बात अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कही कि इनको लेकर के तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। व अम्मल हुसैन इब्न अली फ़इन्नहु रजुलुन खफ़ीफ़ व अर्जू अन यकफ़ियहु अल्लाहु बिमन क़तल अबाहु व ख़ज़ल अख़ाहु। कहा कि जहां तक हुसैन बिन अली का मसला है, तो इनके बारे में ये नोट कर लो, इनका मामला भी बड़ा हल्का है। यानी इनको भी ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यजीद को जो है ये वसीयत की कि इनको लेकर के भी आप परेशान नहीं हो। क्यों नहीं होने की जरूरत है? क्योंकि हुसैन बिन अली को ये वही लोग जिन्होंने इनके बाप को कत्ल किया है, वही इनके लिए काफी हो जाएंगे। यानी इशारा क्या था कि वही कूफे के लोग जिन्होंने इनके बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, और उनके बाप को पहले उन्होंने ही जो है खलीफा बनाया, सब कुछ किया, और जो है अपने आप को ये जाहिर करते थे कि वो उनसे बड़ी मोहब्बत रखने वाले हैं, और उन्हीं लोगों ने फिर उनको कत्ल किया। ऐसे ही मामला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी होगा। ये बात उन्होंने उस वक्त वसीयत में कही है, और वाकई ऐसा हुआ भी बाद में कि ये छोड़ेंगे नहीं कूफे वाले इनको। इनको कुछ ना कुछ पिन करते रहेंगे कि आइए हमारे पास जो है, हम आपके हाथ पर बैत कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उनको कुछ ना कुछ उभारते रहेंगे, और जब थोड़ा-सा भी मौका मिलेगा तो खुद ही उनको कत्ल भी कर देंगे, कुछ मसला हुआ तो। इसलिए इनको भी लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहा, और उनका ख्याल रखने के लिए भी कहा, और ये भी कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं, और हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी भी बहुत अजीज है। और कहा कि इराक के लोग इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको जरूर जो है निकालेंगे वहां से, मदीना से। कोशिश यही करेंगे कि तुम्हारे खिलाफ इनको भड़काएं। अगर कभी मामला ऐसा होता है, उनको तुम्हारे खिलाफ जो है खड़ा करते हैं, तो कहा, ये उनको वसीयत किया कि उनको माफ कर देना अगर कभी ऐसा होता है, और कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करना। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से ये वसीयत की। कहा, व अम्मा इब्न जुबैर फइन्नहु खब्बुन वब्बुन। जहां तक अब्दुल्लाह बिन जुबैर की बात है, तो उन्हीं के बारे में इनको खबरदार किया कि जरा होशियार रहना इनसे। इनसे जरा जो है अच्छी तरह से खबरदार रहना, इनका ख्याल रखना कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर वो तुमसे सुलह चाहते हैं तो ठीक है, कबूल कर लेना, नहीं तो इनका मामला है कि ये जो है उठ खड़े हो सकते हैं तुम्हारे खिलाफ। और वाकया भी ऐसे ही हुआ, जैसा कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत में कहा है। वैसे ये वसीयत तबरी की जो किताब है, तारीख़ तबरी, उसमें ये वसीयत है, उसका ज़िक्र है। ये बात आपके सामने पेश कर दूँ। और आप जानते हैं कि तारीख़ तबरी का उतना ज़्यादा एतबार नहीं है, लेकिन जो है इस वसीयत के अंदर जो बातें हैं ना, वो तजर्बे की वो बातें हैं, जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तजर्बा था, वो तजर्बा ही इसके अंदर बोल रहा है। और यकीनन ये तजर्बे ऐसे हैं कि इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इसीलिए हमने चाहा कि ये पूरी वसीयत हम आपके सामने आपको पढ़ कर के सुनाएँ, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में इससे फ़ायदा उठा सकें। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। हमारा ये टाइम जो है ख़त्म हुआ तारीख़ का। अब हमारी तज़किये की क्लास होगी, तज़किये नफ्स, जो कुरान की आयत की तफ़सीर
جو ہے پیش کرتے ہوئے نفس کے تزکیے پر زور دیا جاتا ہے، تو وہ کلاس ہماری ہوگی۔ اس کلاس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔